Hello students, today we'll study about the study of logarithm. That is, here we'll be discussing about logarithmic tables. See, you have to make it very clear that in 11th and 12th standard, whether it is theory or practicals, you have to do the calculations using log tables only. Apart from log tables, if you are using calci, that is अगर मोबाइल फ़ोन चोरी से इस्तेमाल होता है, if you are doing calculation by manually, then in both the cases you will be getting 0 marks for that particular calculation. Here the calculations whatever are to be done, they are to be done strictly using log tables only. log table से ही calculation अपने को करना है, दूसरे किसी और मीन से calculation करना नहीं है. और log tables का यूज़ क्यों करते हैं वो भी अपने को समझ में आएगा. We'll come to this topic now, one by one the points will be discussed. Now ये log कहाँ से generate हुआ, how this log is generated. See, if expression is considered that a power x is equal to b, one expression is given as a power x is equal to b, then this particular expression can be also written as x is equal to log of b base a. Now here both these expressions a power x is equal to b and x is equal to log of b base a, mathematically both of these expressions are one and the same thing. Doesn't make any difference. दोनों का expression same है. फर्क क्या है? The difference is that this expression a power x is equal to b is called as exponential form of mathematical expression, and this x is equal to log of b base a is called as logarithmic form of that mathematical expression. So both these expressions they are having one and the same meaning. दोनों का मतलब सेम है, मीनिंग सेम है, बट एक्सप्रेस करने का तरीका है. दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ लॉग. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फॉर्म. नाउ दिस लॉग हैज सर्टेन लॉज टू बी अबाइड बाय देम एंड वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉज ऑफ लॉगरिथम हियर first one, if you apply log to the product, then it gets converted to sum, that is log of a plus log of b. Now use of this log enables to convert this multiplication in terms of sum. Now as compared to multiplication, sum is always easy, तो calculation अपने लिए आसान हो जाता है. Same way, if you apply this log to division of the terms log of a upon b, then that will be given as log a minus log of b. Here division is converted in terms of subtraction. Now as compared to division, subtraction is always easy. Next one is log of a power m. Log of a term is considered a which is having power m, then this power is shifted to base, that is it will be given as m into log of a. And one more, if log of a base b is given to you, then this can be expressed as log of a upon log of b. जो बेस वाला टर्म है वो भी डिनोमिनेटर में सेपरेट लॉग में आएगा. Now question arises here, I had told that it is log of a base b. So what about base to these two logs? So here you can consider any arbitrary base. For example, if I consider base k for this first log, then here also it will be base k. If to the numerator you are considering base as m, then here also to the numerator you will be considering base as m. That means it can have any base, but the condition is that the base for both the logs, numerator as well as denominator, should be one and the same thing. Then after this laws of logarithm, we'll have types of logarithm. In that first one is natural log and second one is common log. Now what is the difference between this natural log and common log? Natural log means we'll always consider log to the base e, where e is an irrational number which is having approximate value of 2.718. This is lying between 2 and 3. This you had studied in school level. And common log will be having base of 10. That means here the log will be expressed as log of x base c, and same way here log of x will be expressed to the base 10.
दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग. लेकिन अभी दोनों में फर्क क्या है? सी इन कैलकुलस, दैट इज इन लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग दिस लॉग इन मैथमेटिक्स or you are discussing in any derivation of physics or chemistry, log is arise there, then log will be having base e. By naturally log will be always having base e. And this common log that is base 10 is regarding with our log table. Log table में जो calculation होता है that is based on this common log. इसके अलावा भी bases होता है, but basically दो type consider होता है, natural log and common log. Now we will see that how these log tables are being used to do the calculations. So now students, so far we had discussed about types of log. Now in types of log, what was that? First one was natural log and second one was common log. Natural log deals with base e, common log deals with base 10. Here we will be using log table. This is our log table. This is the log table provided by the board, and similarly you have Navneet log table also that you can purchase from the market. That is always to the base 10. Now what happens when we consider log of any number? See, you can consider log of any number. Suppose log of any number x is considered, then that is bifurcated, or that is given in the form of like this way. One digit will be given here, decimal. After that 4 digit consecutively will be given. These x are representing digits. So log of any number is comprising of two parts. This is the first part and this is the second part. The first part of this number is called as characteristic. Log of any number always comprises of two parts, characteristic, and second one is mantissa. Second one part will be mantissa. Now regarding this characteristic, here the thing is that we don't use log table. Characteristic लिखते वक्त अपने को log table का जरूरत बिल्कुल भी नहीं होता, because characteristic is basically defined on the basis of number of digits before decimal point. Number of digits before decimal point minus 1. This is your characteristic. This is how it is, the characteristic is defined. So log of any number is defined as characteristic and mantissa is based on log tables. This is being derived from log tables. So two parts for logarithm, one is characteristic, another is mantissa. Now one by one we will see here. See, for example, certain numbers are given to you, log of 2.303. Now I want to find out logarithm of this number. So first of all I will write down the characteristic of this number and then mantissa will be written. Now here we have to see that what is the position of decimal point. Now if you look at here, the position of decimal point here is given in such a way that before decimal the number of digits is given as 1. How many digits are given here? 1 digit is present. So its characteristic will be 1 minus 1, that will be given as 0. So characteristic of this number comes as 0. The next one, 314. Now if I want to find out log of 314, so 314 is basically 314.0. Before decimal, how many digits are present here? 3 digits are present. So characteristic of this number will come as 2.3 minus 1, that comes as 2. Next number is 0.98. How many digits are before decimal point? You can see that 0 is present before decimal point. So many of the students will say that the number of digits before decimal point will be 1. But actually it is not 1, it is 0. The reason is that if you remember, sometimes we read this 0.98 as 0.98 also. It is understood that 0.98 means it is 0.98. That means this 0 is only for the purpose of writing. It is of no use while considering the number of digits before decimal point. So before decimal point the number of digits present will be 0, and 0 minus 1, that will become as minus 1. But here in logarithm, instead of minus 1 we use bar 1. Now bar 1 and minus 1, they are having same type of calculation. The operations are same, but the values are different. Minus 1 and bar 1, these are two different things. Don't get confused with that, but the calculation will remain same. Just for example, if I say that minus 1 minus 2, then you say that it is minus 3. But if we consider bar 1 minus 2, then it will come as bar 3.
कैलकुलेशन वैसी है, -1 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आया, बार 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो बार 3 आएगा। तो कैलकुलेशन माइनस और बार का एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा फर्क रहेगा लेकिन वैल्यूज अलग है, दैट विल कम टू ऑन लेटर ऑन। नेक्स्ट 0.00667, तो वन सेकेंड बिफोर डेसिमल 0 मतलब नंबर ऑफ डिजिट इज 0, सो एज पर दैट कैरेक्टरिस्टिक शुड कम एज बार 1, उसका कैरेक्टरिस्टिक बार 1 आना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑल्सो वी हैव 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरो, डेसिमल पॉइंट के बाद भी 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज है उसके अंदर। इसका मतलब है बार 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने को, एंड द कैरेक्टरिस्टिक विल कम एज बार 3। डेसिमल के बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरो रहेगा, तो अभी अगर ऐसा दिया रहता 0.100667, तो ये डेसिमल के बाद कॉन्जिक्यूटिव जीरो नहीं है, 1 आ गया बीच में, तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक बार 3 नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक बार 3 सिर्फ 0.00667 के लिए होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज है। द नेक्स्ट वन 58425, 58,425 है, तो डेसिमल पॉइंट अगर इधर रखेंगे तो ये होगा 5842.50। बिफोर डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 5 - 1 दैट विल कम एज 4। नाउ इट कम्स द टर्न ऑफ मैंटिस ऑफ ऑल द नंबर। मैंटिसा किसका लेने का है, 2.303 का लेने का है। नाउ रिमेंबर दैट 2.303 में से आपको डेसिमल पॉइंट छोड़ना पड़ेगा जब भी मैंटिसा लेते, यू हैव टू एक्सक्लूड दैट डेसिमल पॉइंट व्हाइल कंसीडरिंग द मैंटिसा। तो डेसिमल पॉइंट छोड़ के अपने पास ये 4 डिजिट आया, और लॉग टेबल में अपने को 4 डिजिट ही लगता है लॉग टेबल निकालने के लिए। लेकिन ये 4 डिजिट का बाइफिकेशन कैसा होगा, वी ऑलवेज कंसिडर फर्स्ट 2 डिजिट्स टुगेदर, पहला 2 डिजिट हमेशा साथ में रहेगा, फिर थर्ड डिजिट कंसिडर करने का, फिर उसके बाद 4th डिजिट होगा। दिस इज़ योर थर्ड डिजिट, दिस इज़ योर 4th डिजिट, और फर्स्ट 2 डिजिट अलग रहेगा। ना हाउ टू लुक इन लॉग टेबल्स, लॉग टेबल में कैसा बाइफिकेशन दिया, कैसा एलिमेंट है, यू कैन सी हियर। ना इफ यू सी हियर, योर लॉग टेबल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट कॉलम where the numbers are given as 10, 11, 12, 13, 14 डॉट 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 करते करते इधर 49 होगा, फिर इसके बाद 50, 51, 52, 53 डॉट 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 करते करते यहाँ तक 99 तक है। देन मिडल पार्ट ऑफ दिस लॉग टेबल where we have the section, the columns are given from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक भी है। ऐसी इस तरफ ये पेज पे भी ऐसी दिया, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एंड लास्ट पार्ट इज योर मीन डिफरेंस पार्ट। लास्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मीन डिफरेंस। नाउ इन दिस मीन डिफरेंस द कॉलम्स आर गिवन अगेन फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मीन डिफरेंस में 0 नहीं है, इट इज़ ओनली फ्रॉम 1 to 9। तो इसको देखने का कैसा, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है 23 ना, दैट विल बी लुक्ड इन द फर्स्ट कॉलम, इसको पहले कॉलम में देखने का। जो थर्ड डिजिट है वो बीच वाले सेक्शन में आएगा, 0 में आएगा, और जो 3 है वो मीन डिफरेंस में जाएगा, वो इधर आएगा। तो इसका मतलब यू हैव टू लुक फॉर 23rd रो इन द फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 23rd रो। नाउ इन दिस 23rd रो वी हैव टू लुक फॉर 0th कॉलम। 23rd रो का 0th कॉलम है, तो 23rd रो का 0th कॉलम कितना, 3617 है। वैल्यू कितना आ रहा है इसका, 3617, और उसका थर्ड मीन डिफरेंस है, उसी रो में थर्ड मीन डिफरेंस देखो कितना है, दैट इज गिवन एज 6। तो 6 इसको ऐड करेंगे, दैट विल कम एज 3623। तो इसका मैंटिसा आएगा 3623। दिस इज द मैंटिसा ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट वाले का मैंटिसा लेने का 314। अपने को 4 डिजिट चाहिए, इधर 3 ही दिया है, डेसिमल तो लगता नहीं है, तो चौथा डिजिट नहीं होगा तो 0 डालेंगे, फिर वैसी बाइफिकेशन होगा। सेम बाइफिकेशन कैसा होगा, 3140, 31 रो का 4th कॉलम, 31 रो आएगा इधर, और इसका 4th कॉलम, दिस वैल्यू इज 4969। 0th मीन डिफरेंस, इसमें 0th मीन डिफरेंस है ही नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 4969। तो मैंटिसा इसका लिखेंगे हम लोग 4969। नेक्स्ट वन 0.98 है, इसका मैंटिसा नहीं गया तो फिर डेसिमल छोड़ना पड़ेगा। डेसिमल छोड़ा तो क्या हो जाएगा, 098 होगा, लेकिन आगे 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दीजिए। कितना बचा अपने पास, सिर्फ 98। तो लेकिन 98 से होगा नहीं ना, 4 डिजिट चाहिए, तो उसके बाद क्या होगा, वी विल प्लेस 2 zeros एंड दिस विल बी बाइफिकेटेड एज फर्स्ट 2 डिजिट, थर्ड डिजिट एंड 4th डिजिट। दैट मीन्स इन लॉग टेबल वी हैव टू सर्च आउट फॉर 98th रो 0th कॉलम। अभी 98th रो अगर देखें तो इधर दिख रहा है अपने को 98th रो, इस कॉलम में देखो 98th रो दिखाई देगा, इधर आ गया लास्ट सेकंड लास्ट में 98th रो का 0th कॉलम, दैट इज फर्स्ट कॉलम। 0th कॉलम देखें तो इट इज कमिंग एज
9912 दिख रहा है और 0th मीन डिफरेंस होता ही नहीं, तो इसका मैंटिसा कितना हो जाएगा, मैंटिसा विल कम एज 9912। नेक्स्ट वन 0.00667 है, फिर डेसिमल छोड़ देंगे तो 00667 आएगा, लेकिन अपने को लेना क्या है, 667 लेने का, क्या लेने का है, 667। तो इसका 66 का 7 0 मीन डिफरेंस होगा नहीं, लिव इट। 66th रो, इसमें देखेंगे 66th रो 7th कॉलम 8241 आएगा, देखो इधर 66th रो का 7th कॉलम, दिस कम्स एज 8241। तो मैंटिसा फॉर दिस विल कम एज 8241। नेक्स्ट 58425 है, 58425, अपने को तो 4 डिजिट चाहिए, इधर 5 दिया है, तो मैथ्स का रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर ये 5 है या 5 से ज़्यादा है, इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5 और मोर देन 5 देन विल लीव दिस बाय इंक्रीजिंग दिट 1 डिजिट हियर। अगर 5 है 5 से ज़्यादा है तो इधर इंक्रीज करेंगे, दैट विल बिकम एज 5843। और अगर 5 से कम रहेगा तो 5842 ही रहेगा। लेना तो अपने को 4 डिजिट ही है, वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस 4 डिजिट्स ओनली। Now 4 digit is considered once again first 2 digit, third digit and 4th digit, that is 58th row 4th column. So you can see here 58th row, this one 4th column ये आया 7664 और उसके बाद थर्ड मीन डिफरेंस दिया था, देखो थर्ड मीन डिफरेंस उसका दिया है इधर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, दैट मीन्स 7664 प्लस 2 दैट इज 7666 होगा। तो मैंटिसा फॉर दिस नंबर विल कम एज 7666। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट लॉग ऑफ एनी नंबर। नाउ आई विल गिव यू सम टाइम, आपको टाइम दे रहे हैं, ये आप लॉग बाकी का नंबर निकालो, फिर उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये 4 नंबर है जिसका लॉग लेने का है। ओके देन नाउ विल सी एंटी लॉग ऑफ द नंबर। एंटी लॉग अगर लेना है अपने को नंबर का, so if you can see here antilog, if you consider of this number here, for antilog of any number we always consider antilog from the mantissa part. For example antilog of 2.9912 दिया है, 2.9912 है, तो ये डेसिमल के पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका अपने को कोई यूज नहीं। मैंटिसा इज ओनली बेस्ड ऑन लॉग, एंटीलॉग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन मैंटिसा पार्ट। तो दिस 0.99 विल बी टेकन टुगेदर जस्ट लाइक इन द लॉग, फर्स्ट 2 डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट। एंड इफ यू लुक एट द एंटीलॉग टेबल, तो वो लॉग टेबल जैसा ही, उसका भी 3 पार्ट है। बस फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर 0.00 से शुरू होगा, 0.00, 0.01, 02, 03 डॉट 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 करते करते ऐसा प्रोसीड होगा, एंड दिस विल गो टिल द लास्ट एज 0.99 तक गया है। बीच वाला वैसे का वैसी सेक्शन है। इन मिडल सेक्शन इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर वापस वो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 9 तक है, और मेन डिफरेंस 1 से लेके 9 तक है। तो बाकी तो वैसे ही खाली पहले कॉलम में चेंज होगा ना। हियर इट इज सेड दैट 0.9912 मतलब 0.99 का फर्स्ट कॉलम। तो इन एंटीलॉग टेबल यू हैव टू सर्च आउट फॉर 0.99 रो। 0.99 मतलब लास्ट वाला रो है, 0.99 का फर्स्ट कॉलम बोला है, तो 0.99 का फर्स्ट कॉलम इट इज 9795। तो कितना आ रहा है इसका, 9795, ये 991 का, बट उसी का सेकंड मेन डिफरेंस भी बोला है। अभी सेकंड डिफरेंस मतलब उसी रो में सेकंड मेन डिफरेंस 5 दिया है इसका, तो 5 इसके साथ ऐड करेंगे, दैट इज 9795 एडेड विथ 5 दैट विल बिकम एज 9800। तो इसका एंटीलॉग कितना है मैंटिसा का, दैट इज 9800। फिर ये 2 का क्या यूज़ है, बस बिल्कुल वैसी लॉग में जैसा है। In log, while writing this characteristic, we had considered number of digits before decimal point -1. तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक में अभी एंटी लॉग लेते वक्त उसमें 1 ऐड करने का, while considering एंटी लॉग we have to add 1, और अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम एज 3। अभी 3 का यूज़ कैसे होगा, सी while considering एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर बाई डिफ़ॉल्ट डेसिमल पॉइंट हमेशा सभी के पहले रहता है, इधर रहता है। लेकिन अगर इसको ऐड करने के बाद 3 आया, इसका मतलब है यू हैव टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट ऑन राइट साइड। पॉजिटिव है तो राइट साइड, नेगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा। तो राइट साइड में 3 डिजिट सरकाने का मतलब है यू हैव टू शिफ्ट बाय दिस 3 डिजिट, दैट इज 1, 2, 3, इट कम्स एज 980.0। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एंटीलॉग 2.9912, 980.0। जस्ट लाइक हियर अभी कंसिडर करेंगे इसमें किसका एंटीलॉग लेने का, अपने को 0.7243 का लेने का, मतलब 7243। तो इधर भी एंटीलॉग टेबल में 0.72 का 4, 0.72 आ गया,
इसका फोर्थ कॉलम लेंगे, इट इज़ 5297 और उसका थर्ड मीन डिफरेंस बोला है, तो दैट थर्ड मीन डिफरेंस इज़ 4, तो 5297 प्लस 4 लेंगे तो 5301 आता है। तो एंटी लॉग कितना आ रहा है इसका 5301। कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1 है, 0 यहाँ पर 1 ऐड करेंगे दैट विल बिकम एज 1, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट डेसिमल इधर है लेकिन आई हैव टू प्लेस डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, इट विल बिकम एज 5.301। ये हो गया इसका वैल्यू 5.301। नेक्स्ट वन बार 1.3321, तो बार 1.3321 मतलब डेसिमल के बाद 0.332 और 1। सो एंटी लॉग टेबल वी लुक एट फॉर 0.33, फिर अपने को 0.33 में देखने का है। 0.33 सेकेंड कॉलम इट इज 2148 और उसका फर्स्ट मीन डिफरेंस लेंगे 0, तो फाइनली दिस एंटी लॉग कम्स एज 2148। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2148 के बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक बार 1 है। आफ्टर एडिंग 1 टू बार 1 व्हाट विल हैपन, दिस विल बिकम एज 0। डेसिमल पॉइंट बाय डिफॉल्ट आपका इधर है और ऐड करने के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब ना तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा ना डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, जहाँ था वहीं रहेगा, दैट मीन्स इट इज 0.2148 यानी कि 0.2148 आएगा। तो वैल्यू फॉर दिस एंटी लॉग ऑफ बार 1.3321 इज 0.2148। तो यहाँ पर समझ में 2 को 1 ऐड किया तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल डाला, 0 को 1 ऐड किया तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल डाला, बार 1 को 1 ऐड किया 0 आया, तो इसका मतलब आई शुड प्लेस डेसिमल पॉइंट आफ्टर 0 नंबर ऑफ डिजिट दैट इज बिफोर ऑल द डिजिट, दैट इज 0.2148 करके आया। नेक्स्ट वन हियर बार 3.4293, दैट इज वी लुक फॉर द वैल्यू ऑफ 0.4293, 0.42 नाइन्थ कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस, 0.42 ये रहा, 0.42 का नाइन्थ कॉलम दैट इज लास्ट कॉलम इट इज कमिंग एज 2685 एंड थर्ड मीन डिफरेंस इज 2 दैट इज 2687 आएगा ऐड करने के बाद, 2685 प्लस 2 2687। मेन डिफरेंस सब में ऐड होता है एक्सेप्ट एट 2 प्लेसेस दैट इज इन कोसाइंस एंड रेसिप्रोकल, उसको छोड़ के जाकी जगह जिधर भी मेन डिफरेंस है सब जगह मेन डिफरेंस का एडिशन ही होगा। तो आफ्टर एडिंग मेन डिफरेंस वी हैव गॉट दिस वैल्यू दैट इज 2687। कैरेक्टरिस्टिक कितना है 3, व्हेन यू ऐड दिस इट विल बिकम एज बार 2, बार 2 मतलब माइनस, माइनस का मतलब डेसिमल आप लेफ्ट साइड में दो डिजिट से शिफ्ट होगा, यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय 2 डिजिट, मतलब उसके लिए आपको 1 0 2 0 2 डिजिट से शिफ्ट कर द डेसिमल पॉइंट इधर आएगा, द वैल्यू कम्स एज 0.002687। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट एंटी लॉग। नाउ सम ऑफ द एंटी लॉग इज टू बी डिटरमाइंड बाय यू, ये 4 है इसका एंटी लॉग अपने को निकालने है, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। Now we'll find out the values of these two expressions students. In that first one जिसका वैल्यू लेने का है इट इज़ 2.303 होल स्क्वायर इंटू 0.04183 होल क्यूब अपॉन 6.67 पावर 1/3 इंटू 0.5213 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू अपने को निकालने का है। ठीक है, अभी देखते हैं वैल्यू कैसा निकलेगा, विल सी हियर नाउ। व्हाट विल डू दैट, लेट अस कंसीडर दिस इज डिनोटेड बाय x, इसको पहले x कंसीडर किया, देन विल अप्लाई log ऑन बोथ साइड, दैट इज log ऑफ x विल बी इक्वल टू log ऑफ the expression on right side is 2.303 whole square into 0.04183 whole cube whole divided by 6.67 power 1/3 into 0.5213 whole square, applying log on both sides. देन लॉग का लॉज अपने अप्लाई करने का है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, दिस इज व्हाट द हेल्प ऑफ लॉग इज गिवन हियर, सो दिस विल बिकम एज लॉग ऑफ न्यूमरेटर इट इज गिवन एज 2.303 होल स्क्वायर इंटू 0.04183 पावर 3 माइनस लॉग ऑफ
This is 6.67 power 1 by 3 into 0.5213 whole square. So log of a upon b is given as log a minus log b. Now we can take this log inside this bracket for both the terms, और अंदर जो into है उसकी जगह पे प्लस हो जाएगा, because log of a into b becomes as log of a plus log of b. So this will become as log of 2.303 whole square plus log of 0.04183 power 3 minus log is taken inside this bracket also. It is log of 6.67 power 1 by 3 plus log of 0.5213. While doing all this calculation, you have to remember that you have to place the brackets at appropriate places. Without bracket, the calculation becomes difficult for you. Now if you can see that here it is of the form of log of a power m. जो laws apply किया, these powers will be shifted to the bases now in all the four cases. The first one, it will become as 2 into log of 2.303 plus this is 3 into log of 0.04183 minus this is also considered, this is become as 1 by 3 into log of 6.67 power 1 by 3 plus 2 will be shifted here, this is 2 into log of 0.5213. Powers shifted, I'm sorry here, this power will not be present. So power are shifted to the bases. Now we'll consider the log of these values. One by one we'll apply this log. Now this is 2 into log of 2.303. Once again you have to write down the characteristic. तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, एक, तो कैरेक्टरिस्टिक विल बिकम एज 1 माइनस 1 दैट इज 0. फिर लॉग टेबल में चलना है अपने को, और लॉग टेबल में जाने के बाद डेसिमल पॉइंट से अपना कोई लेना देना नहीं है. 2303 बोला है, अभी 2303 बोला है मतलब पहला दो डिजिट साथ में, 23 का 0 और थर्ड मीन डिफरेंस. तो 23 का 0 अगर देखेंगे तो 23 का 0 इधर आया 3617 और उसका थर्ड मीन डिफरेंस आ रहा है 6. 3617 प्लस 6 दैट बिकम्स एज 3623 प्लस 3 इंटू न लॉग ऑफ 0.04183 बोला है. डेसिमल के पहले 0 दिया, दैट इज बिफोर डेसिमल द डिजिट इज 0, दैट मीन्स number of digit before decimal point will be 0. So characteristic should come as bar 1. But along with that there is one more consecutive 0 after decimal point. मतलब bar 1 minus 1 that will become as bar 2. So that is bar 2 point. While taking the mantissa we leave this decimal point, we leave this 0, we will consider only 4183. That is 41th row. 41 row का 8th column देखने का. 41th row 8th column. This comes as 6212. And third mean difference of this is 3. 6212 plus 3 that is 6215. This comes as 6215. हो गया दोनों का log. Minus next bracket 1 upon 3 into 6.67 before decimal digit is number 1, so characteristic will be 0. While mantissa it is 66th row 7th column. So now here we look at here 66th row 7th column. 66th row का 7th कॉलम 8241 है, दैट इज 8241 प्लस 2 इंटू बिफोर डेसिमल 0 मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 माइनस 1 बार 1. फॉर मैंटिसा इट इज 52 रो फर्स्ट कॉलम थर्ड मीन डिफरेंस. सो इन लॉग टेबल 52 रो फर्स्ट कॉलम and third mean difference. Now 52 row first column 7168, third mean difference is 2. 7168 plus 2 that is 7170. So mantissa comes as 7170. So after this substitution now we have to do the calculations. Normally जैसा calculation होता है. Now 2 multiply करना, that is 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 6s are 12. 1 carry, 2 3 is 6, 1 that is 7, this is 0.7246 plus 3 will be multiplied, 3 5 are 15, 1 carry, 3 1 is 3 plus 1 that is 4, next one 3 2 are 6,
then 3 6 are 18, 1 carry, 3 into bar 2 is bar 6. Bar 6 plus 1, that will become as bar 5, minus 1 upon 3 means here 3 will be divided. तो 3 अगर डिवाइड करना है 0 में 0 टाइम्स जाएगा पॉइंट, 3 2 6 रिमेनिंग 2, 2 plus 2 that is 22, 3 7 21, 1 remaining 14, 3 4 12, 2 remaining 21, 3 7 21. It is 0.2747 plus 2 is multiplied here, 2 into 0 that comes as 0, 2 7 14, that 1 carry, 2 1 2 plus 1 that is 3, 2 7 14, 1 carry, 2 into bar 1 is bar 2, bar 2 plus 1 bar 1, it is bar 1.4340. बाकी एडिशन हो गया इसके अंदर. हॉरिजॉन्टली यू हैव टू ऐड, दैट इज 5 plus 6 that is 11, 1 carry, 4 plus 1, 5 plus 4 that is 9, 6 plus 2 that comes as 8, 8 plus 7 that comes as 15, this comes as 1 carry, 1 plus bar 5 bar 4 plus 0 that is bar 4 only. तो bar 4 आ रहा है इसके अंदर. माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, that will come as 0 plus 7 that comes as 7, 4 plus 4 that comes as 8, 3 plus 7 that comes as 10, 1 carry, 4 plus 1 5, 5 plus 2 that is 7, and this comes as bar 1 plus 0 as bar 1. अब ये सब्ट्रैक्ट करने का हॉरिजॉन्टली अगर अपने को नहीं जमता है तो आप वर्टिकल लिख के करेंगे. बार 4.5891 टू बी सब्ट्रैक्टेड एज बार 1.7087. नाउ सी हियर, बार 1.7087 सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन माइनस 1 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी, 1 कैरी 11 minus 7 that is 4, 8 minus 8 that is 0, 8 minus 0 that is 8, 5 में जाएगा नहीं, अगेन 1 कैरी, 15 minus 7 that is 8, बट 1 कैरी लेने के बाद इधर बचेगा बार 5. द बार 5 माइनस ऑफ बार 1, माइनस ऑफ बार 1 मतलब प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 जैसे प्लस 1 होता है. सिमिलरली माइनस ऑफ बार 1 विल बिकम एज प्लस 1, बार 5 प्लस 1 विल बिकम एज बार 4, दैट इज बार 4.8804, बार 4.8804. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉग ऑफ एक्स. अब ये log ऑफ x मिला तो फिर उसके बाद x निकालने के लिए नाउ वी हैव टू कंसीडर एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर. दिस इज एंटी लॉग ऑफ बार 4.8804. अभी इसका एंटी लॉग लेने का तो कैसा, पहला 2 डिजिट फिर तीसरा फिर चौथा डिजिट. तो इन एंटी लॉग टेबल विल गो 88th रो. एंटी लॉग में 88th रो ये रहा, 88th रो 0th कॉलम, 4th में डिफरेंस. 88 रो का 0 कॉलम 7586 और 4th में डिफरेंस इज गिवन एज 7. तो 7586 प्लस 7 दैट इज 7593 होगा. एंटी लॉग विल कम एज 7593. बार 4 है, डेसिमल प्लेस करना है, 1 ऐड करना पड़ेगा बार 3. बार 4 को 1 ऐड किया, बार 3 हो गया, तो इसका मतलब है 3 0 लगाना पड़ेगा, 1 2 3. This is 0.000759 is the value. Problem here. So another problem here, students. Here also let us consider this as x. This is your second problem. X is equal to 9.8 whole cube into 0.5281 power 1 by 3, 3.14 power 4 into 0.007183 power 1 by 2 into 0.0214 power 2. Once again we will be considering log on both sides, that means it will become as log x is equal to log of numerator it is applied, that is 9.8 whole cube into 0.5281 power 1 by 3 divided by 3.14 power 4 into 0.007183 power 1 by 2 into 0.0214 power 2. In denominator we have one more term. Once again log of a upon b will be log a minus log b. So log a, it is 9.8 whole cube into 0.5281 power 1 by 3 minus log of, here it is 3.14 power 4 into 0.00783
पावर 1/2 into 0.0214 power 2. Taking log inside the bracket, this will be given as log of 9.8 whole cube plus log of 0.5281 power 1/3. Here also if you take inside this will become as minus of log of 3.14 power 4 plus log of 0.007183 power 1/2 into 0.0214 power 2. Plus log. Now after that powers will be taken to the bases. This is 3 into log of 9.8 plus 1/3 into log of 0.5281 minus, here also this 4 will be shifted to the base, 4 into log of 3.14 plus 1/2 into log of 0.007183 plus 2 into log of 0.0214. Then you have to substitute the values of log. First one it is 3 into log of 9.8. तो डेसिमल के पहले डिजिट इसका कितना है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0. फिर अपने को देखना 98 का 0. लॉग टेबल में जाएंगे, नाइन्टी रो ये रहा और 0th कॉलम 98 का 0 यहाँ पर आ रहा है 9912, जिसका वैल्यू लिखेंगे 9912 प्लस 1/3 इंटू 0.5281 का लॉग है. कैरेक्टरिस्टिक मीन्स डेसिमल के पहले डिजिट 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक विल कम एज बार 1 पॉइंट. मैंटिसा के लिए 52 का 81, तो 52 रो 8th कॉलम, 52 रो का 8th कॉलम और फर्स्ट मीन डिफरेंस दैट इज 1. 7226 प्लस 1 7227. दिस इज 7227 माइनस 4 इंटू डेसिमल के पहले 3 है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा 0 1 - 1. 31 का 4 देखेंगे तो इन लॉग टेबल 31 रो 4th कॉलम इट इज़ 4969 प्लस 1/2 इंटू, इधर डेसिमल के पहले 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक उसका आएगा बार 1, बट 2 कॉन्जिक्यूटिव और 0, बार 1 - 2 दैट इज बार 3. बार 3 पॉइंट we'll look at for 71 row 8th column 3rd mean difference. 71 row 8th column and 3rd mean difference that is 2. 8561 plus 2. 8561 plus 2 it will be 8563. 8563 plus 2 into डेसिमल के पहले 0 बार 1 और एक 0 मतलब बार 2 दैट इज बार 2 पॉइंट. 21 का 4 देखने का, तो लॉग टेबल में आएगा 21 का 4 3304 3304 इधर आ गया. ठीक है, अभी ब्रैकेट्स ओपन करना है. 3 विल बी मल्टीप्लाइड हियर दैट इज 3 2 6 3 1 3 3 9 27 2 carry 3 9 27 plus 2 that is 29 2 carry 3 into 0 plus 2 that is 2 plus 1/3 3 इधर डिवाइड करने का. बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. इसके पहले कैसा था, जो प्रॉब्लम हमने डिवीजन किया था वहाँ पर बार नहीं था, इधर बार है. और अगर बार को डिवीजन करने का है तो ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों सेपरेट पार्ट है. बार इज ओनली मेंट फॉर कैरेक्टरिस्टिक, इट इज नोवेयर कनेक्टेड विद मैंटिसा. दैट मीन्स आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो व्हाट शुड बी डन, तो उसके लिए करना ये होता है कि ये जो बार 1 है उसको हम लोग लिखेंगे बार 3. ऐसा इसलिए बिकॉज इट शुड बी एक्सप्रेस मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर. अभी बार 3 लिखा तो उसको कॉम्पनसेट किससे करेंगे, +2 से. ना बार 3 + 2 कितना होगा, बार 1. सो वी हैव रिटन दिस बार 1 एज बार 3 + 2 और इसको लिखेंगे 2.7227.
Now when you add this bar 3 plus 2.7227, it will again come back as bar 1.7227. ऐसा इसलिए लिखते हैं कि नाउ बार 3 विल बी मल्टीपल ऑफ दिस 3, जिसको डिवाइड कर सकते हैं, और ये मैंटिस और कैरेक्टरिस्टिक दोनों अभी पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से बाइफर्केशन अपने को करने का, बार 1 है तो इसका मल्टीपल डिनोमिनेटर का बनाने का। ये इधर लिख दिया माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट पे आइए, 4 9 36, 3 कैरी, 4 6 24 प्लस 3 दैट इज 27, 2 कैरी, 4 9 36 प्लस 2 दैट इज 38, 3 कैरी, 4 4 16 प्लस 3 दैट इज 19, 1 कैरी, 4 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1.9876। फिर हाफ ऑफ बार 3.8563, फिर प्रॉब्लम आ गया, देखो बार 3 और इधर डिवीजन है लेकिन मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल है नहीं, तो 1/2 को कुछ नहीं करेंगे, बार 3 की जगह पर लिखेंगे बार 4 प्लस 1.8563, बिकॉज बार 4 इज़ मल्टीपल ऑफ 2, डिवाइड हो सकता है। मल्टीप्लाई करते वक्त लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, अभी 2 इसको मल्टीप्लाई करना चलेगा, 2 4 8, 2 इंटू 0 इज 0, 2 3 6, 2 3 6 एंड 2 इंटू बार 2 इट इज़ बार 4। Now we can do that further calculation, that is 2.9736 प्लस 3 इसको अगर डिवाइड करें दैट इज़ बार 1, प्लस इसको डिवाइड करें 2 तो जाएगा नहीं, 0.27, 3 9 27, फिर बच्चा 2 नहीं जाएगा, 0 22, 3 7 21, फिर आएगा 1 17, 3 5 15। बस 4 डिजिट के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर 4 से फिर रुक जाने का, और आगे जाने का ज़रूरत नहीं कैलकुलेशन के लिए। This is 1.9876 plus here dividing this 2, this will become as bar 2, plus इसको डिवाइड अगर करेंगे तो 1 तो जाएगा नहीं, तो 0.18, 2 9 18, फिर 5 आएगा, 2 2 4, फिर 4 आएगा, 1 कैरी 16 दैट इज 2 8 16 एंड 2 1 2 प्लस बार 4.6608। Now simplification, this will become as 2.9763 plus इन दोनों को मिलाएंगे that will become as bar 1.9075 minus this is 1.9876, these two will be taken together, that is bar 2.9281 plus that is bar 4.6608. Now adding this 5 plus 3 that comes as 8, 7 plus 6 that comes as 13, 1 carry, 0 plus 1 plus 7 that is 8, 9 plus 9 that is 18, 1 carry, bar 1 1 0 और ये आएगा 2.8838 माइनस इन तीनों को ऐड करेंगे, दिस विल बिकम एज 8 plus 1 9 plus 6 that is 15, 1 carry, 0 plus 1 plus 8 9 plus 7 that is 16, 1 carry, 7 plus 2 9, 9 plus 8 17, 1 carry, 7 plus 9 16, 16 plus 9 25, 2 carry, 2 plus bar 4 is bar 2, bar 2 plus bar 2 is bar 4, bar 4 plus 1 is bar 3, it is bar 3.5765। now subtraction करने के लिए 2.8838 minus bar 3.5765, this is 8 minus 5 3 में 6 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 13 minus 6 that is 7, 7 बचेगा, 7 minus 7 that is 0, 8 minus 5 that is 3, 2 minus of bar 3 यानी कि 2 plus 3 that comes as 5, so this comes as 5.3073, this is log of x, so x will be equal to anti-log ऑफ 5.3073। तो एंटीलॉग किसका देखने का, 30 का 7 और थर्ड कॉलम। तो एंटीलॉग टेबल में आएंगे, एंटीलॉग टेबल में क्या दिया है, 30 का 7.30 का 7th कॉलम 2028 और उसका थर्ड मीन डिफरेंस 1 है, 2029 आएगा। तो दिस वैल्यू कम्स एज 2029। कैरेक्टरिस्टिक 5 है, इसका मतलब 5 में 1 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम एज 6। तो डिजिट विल बी, decimal point will be after 6 digit, 1 2 3 4 5 6, this is your final answer, that is 202900.0. this is how you have to find out log and anti-log calculation for any problem. Now next, these are the two problems that you have to do on your own. You can note it down, this problem, then you have to do this calculation. Ready.